ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج سے چند دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کرناٹک کے شیموگا ضلع کے شکاری پور کو کیسا بدلا گیا، 37 سال کے عرصے میں ایک گمنام پسماندہ شہر میں تعلیمی بیداری جناب حافظ کرناٹکی صاحب نے کس طرح لائی، کتنی محنتیں ہوئیں، کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں چلنے والا مدرسہ کس قدر پھیل گیا کہ آج اس کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کیا صرف مدرسہ بنا لینا اتنا ہی کافی تھا؟ کیا گھر کی خواتین کو لڑکیوں پر توجہ دینا ضروری نہیں تھا؟ تو پھر حافظ کرناٹکی نے دوسرا سب سے بڑا قدم اٹھایا۔ جی ہاں، مدرسہ مدینۃ العلوم کی کامیابی سے ماحول میں خوشگوار اور تبدیلی واقع ہوئی۔ لوگ اپنی دینی شناخت پر فخر کرنے لگے، اپنی ثقافت کے تقدس کا احساس روز بروز بڑھتا گیا۔ ایک سوال اور اٹھا کہ لڑکوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام تو ہو گیا، مگر لڑکیوں کی دینی تعلیم کا کوئی معقول انتظام نہیں ہو سکا۔ بہت غور و خوض اور فکر اور بحث و مباحثے کے بعد طے پایا کہ لڑکیوں کے لیے بھی ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ 1995 میں مدرسہ زبیدہ للبنات قائم کیا گیا۔ یہ مدرسہ اس علاقے کے لیے ایک انقلابی قدم تھا۔ ذمہ داروں پر اخلاقی دباؤ بڑھ گیا۔ انہیں ثابت کرنا تھا کہ شرعی حدود، اسلامی پردہ داری کا خیال رکھتے ہوئے دختران اسلام کی تعلیم و تربیت کا بہت ہی پاکیزہ انتظام کیا جانا چاہیے، اور کیا گیا۔ اور واقعی مدرسے کے ذمہ داروں نے ثابت کر دیا۔ لڑکیوں کے والدین کو صاف محسوس ہونے لگا کہ ان کی بچیاں گھروں سے زیادہ زبیدہ للبنات میں محفوظ ہیں۔ لڑکیوں کے مدرسے کی تعمیر کے ساتھ ہی یہ بات توجہ طلب بن گئی کہ کیا صرف مدارس سے مسلمان طلباء و طالبات کا بھلا ہوگا؟ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ حافظ کرناٹکی نے اپنی روشن خیالی اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اور اسکول کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جذبہ سچا تھا، نیت صاف تھی، دلوں میں قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ تھا، اس لیے مشکلیں بھی آسان معلوم ہونے لگی، اور پھر اسامہ اردو پرائمری تاہائی اسکول کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مشنری اسکولوں اور دوسرے مذہبی نوعیت کے پبلک اسکولوں کا شکار نہ ہوں اور اطمینان سے اپنے تعلیمی ادارے کا فائدہ اٹھائیں۔ اسامہ اسکول کے سلسلے کے قیام کے ساتھ ہی بچوں اور بچیوں کا سیلاب سا امڑ پڑا۔ یہ شکاری پور کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا کہ اسکول میں بچے اسلامی لباس اور بچیاں شرعی پردہ داری کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گی، اور لڑکوں اور لڑکیوں کی کلاسز الگ الگ لگیں گی۔ اس جدت و ندرت اور دین پسندی نے عوام الناس کی دل جیت لیے۔ وہ غیرت مند والدین جو خاص طور سے اپنے بچوں کو غیر مسلموں کی اسکولوں میں بھیجتے ہوئے ایک طرح کا اضطراب محسوس کرتے تھے، انہیں اطمینان حاصل ہو گیا۔ دور دراز سے بچے اور بچیاں اسکولوں میں داخل ہونے کے لیے آنے لگی۔ ان کا جذبہ اور شوق قابل دید تھا۔ اسامہ پرائمری ہائی اسکولوں میں دینیات کو بھی اضافی نصاب کے طور پر شامل کیا گیا۔ دینیات کے معلمین و معلمات کا خصوصی طور پر تقرر کیا گیا۔ بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھنے سے لے کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات اور احادیث سے واقف کرانے کے لیے خاطر خواہ توجہ دی گئی۔ ان تمام چیزوں پر مولانا الیاس جاگٹی ندوی بھٹکلی صاحب نے دینیات کی تعلیم میں بچوں اور بچیوں کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے گولڈ میڈل کا اعلان کر دیا، اور دینیات میں اول آنے والے بچوں اور بچیوں کو مولانا ابو الحسن علی اکیڈمی کی طرف سے ہر سال گولڈ میڈل پیش کیے جانے لگے۔ پوری کوشش کی گئی کہ بچے ریاضی، جغرافیہ، سائنس اور سماجیات کے ساتھ ساتھ اردو، کنڑا، انگلش اور پڑھائی کے حد تک عربی میں بھی مہارت حاصل کریں، وہ دین کے سبھی ارکانوں سے واقف ہو جائیں اور اس کو اپنے عملی زندگی میں اپنائیں۔ یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا، اور بچوں اور بچیوں کی کثیر
تعداد کے پیش نظر اسکول کا احاطہ چھوٹا پڑنے لگا۔ ادارے کی ذمہ داروں کے دل بڑے تھے، حوصلے بلند تھے، اس لیے احاطے کی تنگی مانے نہیں بنی اور اس کی وسعت کی راہیں کھلتی چلی گئیں۔ اس کے بعد ناظرین گرامی، اسامہ اردو اسکول کی ترقی اور مقبولیت نے عوام الناس اور ذمہ داروں کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اسکول پوری آب و تاب کے ساتھ چلنے لگے۔ بچے اور بچیاں ایک بار اسامہ اسکول، جو اب زبیدہ اسکول بن چکا ہے، میں نرسری میں داخل ہو جاتے، وہ خاص طرح کے دینی ماحول میں 10ویں پاس کر کے یہاں سے نکلتے۔ اب فکر یہ لاحق ہوئی کہ جن بچوں اور بچیوں کو گلشن زبیدہ اپنے آغوش میں لے کر دینی ماحول میں تعلیم و تربیت کا جام پلاتا ہے، وہ 10ویں کے بعد باہر جا کر پھر سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کی اور بچیوں کی آگے کی تعلیم کی بھی فکر کی جائے، تاکہ 10-15 سالوں کی محنت عکارت نہ جائے۔ بہت غور و فکر کے بعد جونیئر کالج کا آغاز کیا گیا۔ شروع میں جونیئر کالج صرف 2 کورس آرٹس اور سائنس پر مشتمل تھا، اور بعد میں کامرس کا کورس بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ جونیئر کالج دوسرے جونیئر کالجوں سے بالکل الگ تھا۔ یہاں بچوں اور بچیوں کو آرٹس، سائنس اور کامرس اسلامی تہذیب کی فضا میں پڑھائے جاتے تھے، بلکہ پڑھائے جاتے ہیں۔ گلشن زبیدہ کے جونیئر کالجوں میں جو لڑکیاں باہر سے آتی ہیں، ان کی خصوصی دینی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کالجوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے اساتذہ بھی دینی تربیت پر توجہ کی جاتی ہے۔ وہ اساتذہ جو ماڈرن اسکولوں اور کالجوں سے پردہ کر کے یہاں پڑھانے آتے ہیں، انہیں خالی وقت میں دین کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ جن اساتذہ کا قرآن کمزور ہوتا ہے، ان کو قرآن درست کیا جاتا ہے۔ اسلامی ارکان سے مکمل آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ بچوں اور بچیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سائنسی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دینی شعور میں پختگی کے لیے عملی تربیت سے کام لیا جاتا ہے۔ زبان و ادب پر دسترس حاصل کرنے کے ادب کا اضافی درس دیا جاتا ہے۔ ہفتہ واری تقریری پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ادبی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، تحریر و تقریر پر انعامات اور اسناد پیش کیے جاتے ہیں، سائنسی مقابلوں میں شرکت کے لیے مواقع اور ماحول فراہم کیے جاتے ہیں۔ نمایاں کارکردگی کرنے والے طلباء کو اعزازات تو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ماحول کی پاکیزگی اور صالحیت کو خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ نماز کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے کمرہ مختص کر دیا گیا ہے کہ وہ اطمینان سے وہاں نماز پڑھ لیں۔ حفظان صحت کے ہر پہلو پر توجہ دی جاتی ہے۔ بچوں اور بچیوں کی رہنمائی کرنے میں اساتذہ بھرپور دلچسپی لیتے ہیں۔ 10ویں اور 12ویں کے بعد کون سے کورسز مفید ہوں گے، ان کی جانکاری دی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے اور بچیاں ایک بار گلشن زبیدہ میں نرسری کے کورسز میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ 12ویں تک نہایت اطمینان سے پاکیزہ ماحول میں تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہیں اور دین سے اس طرح واقف ہو جاتی ہیں کہ اپنی شناخت کے ساتھ تو زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کے قابل بن جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری ٹیم یہاں گئی، دیکھا، جو کچھ محسوس کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ بنات کی کچھ بچیوں کے جس طرح کے ان کے پروگرام ہوتے ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، ادبی ماحول میں کیسا ان لوگوں کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ گلشن زبیدہ کی بھی کچھ بچیوں کو آپ یہاں پر دیکھیں، اور بنات کی بھی کچھ بچیوں کی تقاریر وغیرہ سنیں، کچھ نظمیں وغیرہ سنیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے تمام لوگوں کے اپنے شارٹس میں الگ الگ بنا کر کے بھی اپلوڈ کریں گے۔ یہ بہت سارے بچیوں نے اپنا صلاحیت ہم لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، لیکن اس پروگرام میں وہ پورے تو نہیں پیش کیے جا سکتے، لیکن ہر بچے کی ویڈیو ہم ضرور ہمارے شارٹس میں پیش کریں گے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن زبیدہ میں کئی طرح کے تعلیمی ادارے ایک ساتھ چلتے ہیں، جس میں نرسری، LKG، پرائمری، ہائر پرائمری، ہائی اسکول، جونیئر کالج، DED کالج، PU کالج، زبیدہ للبنات، مدینۃ العلوم، یہ سارے ادارے گلشن زبیدہ ہی میں آتے ہیں۔ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ زبیدہ للبنات ہے۔ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے جہاں لڑکیوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ کچھ ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں کسی قسم کی محتاجی محسوس نہیں کرے۔ یہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیرت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ہم اس وقت زبیدہ للبنات میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی ذمہ داری محترمہ ناہدہ سنبھالتی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بہت محنت سے سنبھالتی ہے۔ بچے انہی کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو
बच्चों ने जिस तरह तालीम हासिल की है, जिस तरह की तरबियत उनकी की गई है, और उन्होंने सीरत मुस्तफ़ी के बारे में जो कुछ मालूमात हासिल की है, उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, हम चाहते हैं कि इस मजलिस का आगाज़ या इस प्रोग्राम का आगाज़ नाते नबी पाक से हो। मैं नाते नबी पाक के लिए शहनाज को बुलाता हूं कि वह आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हूरों ने अपने जुल्फ से लिखा नबी का नाम, हूरों ने अपने जुल्फ से लिखा नबी का नाम, कैसे भुला सकेगा जमाना नबी का नाम। तारीख अंबिया के खुले आसमान पर, खुले आसमान पर, तारीख अंबिया के खुले आसमान पर, कौसे क़िज़ा के रंगों में उभरा नबी का नाम। आंखें खुली तो होंठों पे वाजिब हुआ दुरूद, वाजिब हुआ दुरूद। आंखें खुली तो होंठों पे वाजिब हुआ दुरूद। आदम ने अर्श पाक पे देखा नबी का नाम। प्यासों की प्यास मिटने की जारी हुई सबील, जारी हुई सबील। प्यासों की प्यास मिटने की जारी हुई सबील। कौसर की जाम की तरह छलका नबी का नाम। काबे में जितने बुत थे वो सब मुंह के बल गिरे, वो सब मुंह के बल गिरे। काबे में जितने बुत थे वो सब मुंह के बल गिरे। गारे हिरा से जिस घड़ी गूंजा नबी का नाम। हाफिज यही तो जिंदा अलामत है इश्क की, अलामत है इश्क की। हाफिज यही तो जिंदा अलामत है इश्क की। दिल से न बाद मर्ग भी निकला नबी का नाम। हूरों ने अपनी जुल्फ से लिखा नबी का नाम। शुक्रिया। अभी आपने एक बच्ची से नात समात फरमाया, जिससे आपको यह अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ बच्चों की अदबी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, ताकि उनकी ज़बान, उनका बयान, उनका लहजा दुरुस्त हो जाए, उनकी उर्दू अच्छी हो जाए। लेकिन ये दीनी अदारा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो दीनी तालीम और सीरत पर दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि आकफा बिनते आरिफुल्लाह यहाँ आए और सीरत नबवी से मुताल्लिक इख्तिसार के साथ अपनी मालूमात का इजहार करें, ताकि मालूम हो या अंदाज़ा हो कि सीरत से मुताल्लिक किस किस्म की मालूमात बच्चों के पास महफूज हैं, और इंशाअल्लाह वो आने वाली नस्लों तक पहुँचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील में 12 रबीउल अव्वल मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल आपकी विलादत से पहले ही हो चुका था। आपकी वालिदा हज़रत आमीना ने आपकी परवरिश की, लेकिन जब आप 6 साल के हो गए तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। लेकिन 8 साल के होने पर दादा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी किफ़ालत की और ज़िंदगी भर आपका साथ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सादिक और अमीन कहलाते थे। जवानी में तिजारत की, आपकी सच्चाई से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी। ये निकाह निहायत मुबारक साबित हुआ। जब आप 40 साल के हो गए तो गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और आपको नबी बनाया गया। शुरुआत में इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जाने लगी, बाद में इस्लाम की दावत खुल्लम खुल्ला दी जाने लगी। कुफार मक्का ने आपको बहुत सताया, आपके सहाबा पर जुल्म किया, ताइफ में पत्थर मारे गए और माशरती बाइकाट किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा।
इसी दौरान हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जिसे आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। जिसके बाद अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में हिजरत की और मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। वहां जाकर आपने मस्जिद नबवी तामीर की, मुहाजिर और अंसार का भाईचारा कायम किया और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। जिसके बाद बदर, उहद, कंदक और दीगर गज़वात पेश आए और इस्लाम दिन ब दिन बहुत तेजी से फैलता गया। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम और भी तेजी से फैला। फतेह मक्का में आपने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ कर दिया। ये रहम करम की अजीम मिसाल थी। आखिरी साल में आपने हज्जतुल विदा अदा किया और इसमें वो अजीम खुतबा दिया जिसमें मसावात, अदल, हुकूकुल इबाद और तक़वे की तालीम दी। जिसके कुछ अरसे बाद आप बहुत बीमार हो गए। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में दफन किया गया। जज़ाकल्लाह। ज़माना जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है, पुरानी चीज़ें, पुरानी कदरें पीछे छूटती जा रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तेज़ रफ्तारी के दौर में हमारी अपनी तारीख़, हमारा अपना मजहबी सरमाया भी हमारे जहनों से महव होता जा रहा है। इस सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीरत की तमाम बातों को बच्चों के जहन में महफूज कर दें ताकि इसका सिलसिला दराज से दराज तक होता चला जाए। सूरत हाल ये है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, हर घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और लोग फिल्में और सीरियल इस कसरत से देखते हैं कि इस तरह के लोगों के नाम तो सभी को याद होते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के नाम तक लोगों को याद नहीं रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़ुबैदा लिल बनात की एक बच्ची अरबीना बिनते नासिर बाशा उम्महातुल मोमिनीन के बारे में अपनी मालूमात शेयर करेंगी ताकि हम लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि यहाँ किस नौइयत की तालीम दी जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल बीवियां 11 थीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 2 बीवियों का इंतकाल हुआ था। वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तमाम अज़वाज मुतहरात में सबसे आखिर में इंतकाल हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। वो कुरैश ख़ानदान की रईसा थी, अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वाली खातून थी। इनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ और खिदमत है, इसलिए इनका मर्तबा भी बुलंद है और बहुत नेक और नर्म मिजाज की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इनका इंतकाल हुआ था। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया था। तमाम अज़वाज मुतहरात बेवा थीं, उसमें एक बीवी कुंवारी थी, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जज़ाकल्लाह। में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों के नाम याद नहीं है। तो ये एक तरह का सरमाया है सीरत का, जो हाफिज कर्नाटकी के तवस्सुत से बच्चों के सीनों में महफूज करने की कोशिश की जा रही है। आफरीन बिनते जाकिर हुसैन से मैं चाहता हूं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों की तफसीलात बयान करें ताकि हमें भी अंदाज़ा हो और हमें भी कुछ सीखने जानने का मौका मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कुल 7 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहिम। दुख्तरान नबी की तादाद 4 है। तमाम लड़कियां बत्न खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। अस्माए गिरामी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी नस्ल सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चली। जब आपके बेटों का इंतकाल हो गया तो आस बिन वाइल सहमी ने आपको अबतर यानी अधूरा कहकर ताना दिया। आपकी दिलबस्तगी के लिए अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई।
सैफ हज़रत इब्राहीम की रज़ाई माँ थी। हज़रत इब्राहीम की वफ़ात के वक्त सूरज ग्रहण का वाक़या पेश आया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत आस बिन रबीअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ। हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी से हुआ। जब हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया तो हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी से हुआ, इसीलिए इन्हें ज़ुन्नून भी कहा जाता है। हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सीरत से मुतालिक जो जानकारियाँ यहाँ बच्चियाँ दे रही हैं वो उनकी तालीम और तरबियत का हिस्सा तो है ही, लेकिन ये हाफिज़ कर्नाटकी साहब की मशहूर ज़माना किताब मंजूम सीरत हमारे नबी का भी हिस्सा है। ये जो मंजूम सीरत है इसके आखिर में इस तरह की मालूमात इख्तिसार के साथ मुहैया कर दी गई हैं ताकि बच्चे और बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और शायरी याद करते वक्त जो चीज़ें, जो नुक्ते, जो अस्माए गिरामी उनके जहन में महफूज न रह सकें वो आखिर के इन हिस्सों को देखकर याद कर लें, समझ लें और जहनों में बैठा लें। पहले ज़माने में रिवाज था कि घरों में बांदियाँ रखी जाती थी। बांदियों का लेना देना, तोहफ़तन पेश करना मबाह था, किसी को बुरा नहीं लगता था, ये उस ज़माने का आम रिवाज था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके चाहने वालों ने कुछ बांदियाँ अता की थीं, तो उसके बारे में तफसीलात पेश करेंगी जमशीदा बिनते दीवान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बांदियों के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 मारिया खिप्तिया, नंबर 2 रिहाना बिनते शमाउन, नंबर 3 नफीज़ा। हज़रत मारिया को शाही मिस्र अस्कंदरिया मखूखस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हदियतन भेजा था। हज़रत मारिया का इंतकाल सन 16 हिजरी का हुआ, मकबरा जन्नतुल बखी में है। रिहाना बिनते शमाउन का ताल्लुक बनु खुरेज़ा बनु नज़ीर से था। ये एक खैदी थी, कनीज़ बनकर खिदमत नबूवी का इजाज़ मिला। 10 सन हिजरी को वफ़ात पाई और जन्नतुल बखी में मदफून है। नफीज़ा हज़रत ज़ैनब बिनते जाश की बांदी थी, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि हम में से बेशतर लोग खुलफ़ाए राशिदीन के नाम भी ठीक से नहीं जानते हैं। और रही बात अशरा मुबश्शरा का, तो अक्सर लोग तो अशरा मुबश्शरा सुनकर ही दंग हो जाते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, तो फिर उनके अस्माए गिरामी कौन बताएगा। बहरहाल यहाँ इस तरह की तरबियत दी जाती है कि तमाम बुनियादी बातें, तमाम बुनियादी चीज़ें बच्चों के जहन में महफूज हो जाएं। तो रुखसार बिनते रशीदा खान खुलफ़ाए राशिदीन और अशरा मुबश्शरा के बारे में अपनी मालूमात शेयर कर रही हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 4 खुलफाए राशिदीन में से 2 खलीफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे और 2 खलीफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हज़रत अबू बकर आपके दोस्त थे और गारियार भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निके में थी। हज़रत उमर की साहिबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निके में थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निके में दिया। जब रुक़ैया के इंतकाल के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह करा दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर हज़रत अली के निके में दिया। वो 10 सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको जन्नती होने की खुशखबरी दुनिया में ही दी थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब न सिर्फ एक तख्लीकी फ़नकार हैं बल्कि वो एक अमली इंसान भी है और सच्ची बात यह है कि बहुत मेहनती उस्ताद हैं। बच्चों को किस तरह तैयार किया जा सकता है, उनके अंदर अदबी खूबी किस तरह पैदा की जा सकती है, उनकी ज़बान और बयान की दुरुस्तगी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर वह तवज्जो करते हैं। बच्चों के शायर अदीब की कोई कमी नहीं, लेकिन बच्चों का कोई ऐसा शायर या अदीब जिसने अमली तौर पर बच्चों को अदब से जोड़ा हो और उनकी तरबियत की हो, तलाश करने के बावजूद नहीं मिलेगा।
हाफिज कर्नाटकी साहब ने बच्चों को जिस तरह तैयार किया है, उन्होंने अदब में जिस जिस नौ की चीज़ें लिखी हैं, उनकी शायरी का दायरा जितना वसी है उसकी मिसाल भी बहुत कम मिलती है। यहाँ बच्चे हमदें, नातें, गज़लें, लोरियाँ, मंजूम, सीरत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, याद करते हैं। और याद करने का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो उसे अपने अंदर महफूज भी रखते हैं, उनकी ज़बान भी दुरुस्त होती है, उनका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त होता है। अब यहाँ पर ज़ुबैदा लिल बनात जो लड़कियों के लिए एक मदरसा बनाया गया है, उस मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां हाफिज कर्नाटकी की मंजूम सीरत हमारे नबी की के कुछ हिस्से पेश करेंगे। वैसे तो इन बच्चियों को तकरीबन पूरी मंजूम सीरत याद है, लेकिन जाहिर है कि इतनी ज़ख़ीम किताब पढ़ के सुनाई नहीं जा सकती है, लेकिन उसके कुछ हिस्से यहाँ पेश किए जाएंगे, जिससे अंदाज़ा होगा कि इन बच्चों में पढ़ने का, लिखने का, शेर व अदब का कितना अच्छा ज़ौक़ है, जज्बा है। एक ख़ास बात यह है कि हाफिज कर्नाटकी ने मंजूम सीरत आम तौर पर अपने हज और उम्रा के सफ़र में लिखा है, और इस किताब की कंपोजिंग और प्रूफ रीडिंग में अजीज़ बेलगामी साहब ने भी ख़ास रोल अदा किया है। बल्कि बकौल हाफिज कर्नाटकी साहब की पूरी किताब अजीज़ बेलगामी साहब ने ही कंपोज की है। तो ये जो सिलसिला है सीरत का, इस सिलसिले में बहुत सारी बच्चियां मंजूम सीरत हमारे नबी के कुछ अज्जा यहाँ पढ़ पढ़ कर सुनाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मंजूम सीरत का आगाज़ करने से पहले अगर मुमकिन हो तो एक नात पेश कर दी जाए। शहनाज से नात सुनिए। ये नात भी डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की लिखी हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब की आंखों का तारा हमारे नबी, रब की आंखों का तारा हमारे नबी, इल्म दानिश का धारा हमारे नबी, फहम पर उनकी हैरत ज़दा है मलक, फहम पर उनकी हैरत ज़दा है मलक, सर से पा तक इशारा हमारे नबी, कदर उनकी न कर पाए हम उम्मती, कदर उनकी न कर पाए हम उम्मती, है फलक का उतारा हमारे नबी। जिंदगी एक समंदर से कुछ कम नहीं, जिंदगी एक समंदर से कुछ कम नहीं, और मिसाली किनारा हमारे नबी, कुफ्र शर के घटा टोप माहौल में, कुफ्र शर के घटा टोप माहौल में, नूर का इस्तारा हमारे नबी। कौन इनका यहाँ कोई पुरसान है, कौन इनका यहाँ कोई पुरसान है, बेकसों का सहारा हमारे नबी, उसको रब की मदद मिल गई गैब से, उसको रब की मदद मिल गई गैब से, जिसने तुमको पुकारा हमारे नबी। चांद को आन के आन में हाफिज़म, चांद को आन के आन में हाफिज़म, कर गए पारा पारा हमारे नबी, रब की आंखों का तारा हमारे नबी, रब की आंखों का तारा हमारे नबी, इल्म दानिश का धारा हमारे नबी। हाफिज कर्नाटकी साहब का कहना था कि मैं जब भी हज और उम्रा को जाता था तो मुझे हुजूर की वो हदीस याद आती थी कि आप जब भी सफ़र से वापस आएँ तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आएँ।
तो मैं हज और उम्र से वापसी पर अक्सर सीरतुन नबी के कुछ मंजूम अज्जा और कभी कभी नातों की सौगात लेकर आता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मंजूम सीरत मुकम्मल हुई। इस मंजूम सीरत को बच्चों ने नहायत ज़ौक़ व शौक़ के साथ ज़बानी याद किया है, अपने सीनों में जगह दी है। तो इन बच्चों का जज्बा और शौक़ देखने लायक है। आप भी मुलाहजा फरमाइए कि ये बच्चे किस तरह सीरत के अज्जा मंजूम अंदाज में पेश करते हैं। सिलसिला सीरत पेश करेंगी कुर्रतुल ऐन बिनत इमरान अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला सीरत। इजाजत मिली जंग की हक से देखो कि अब रहमत हक को जोश आया लोगों। सुहाबा हुए खुश कि था इज़्ने अल्लाह, ये था हुक्म इसका जो सबका है मौला। मिला हुक्म अपनी हिफाजत का उनको, मिला मौका रब की इनायत का उनको। लड़ो जुल्म हो जब किसी का ज़ियादा, यकीनन करो जंग का तुम इरादा। इजाजत है लड़ने की राह है खुदा में, असर आएगा इल्तिजा में दुआ में। उठाए कोई तुम पे तलवार तो फिर करो वार तुम भी खुदा होगा नासिर। जो तुमसे है कमजोर तुम उसको बख्शो, कोई जुल्म तुमसे ना हो उस पे देखो। मगर याद रखना यह है हुक्म कुरान, सताता नहीं बेबसों को मुसलमान। लड़ाई में तुम पे शिकदमी ना करना, कि खौफे खुदा तुम शबो रोज रखना। कभी जंग में इब्तिदा तुम ना करना, सदाकत पे जीना सदाकत पे मरना। करे वार दुश्मन तो जायज है लड़ना, कभी तुम ना ताकत पे अपनी अकड़ना। लड़ो उनसे जो जंग करते हैं ना हक, लड़ो उनसे जो तंग करते हैं ना हक। खुशियों ने ठानी थी गारत गिरी की, क़ियादत वो करते रहे थे बदी की। मदीने के अतराफ जो थे क़बाइल, हकीकत में थे वो जफाकेश के खातिल। उसामा उर्दू और ज़ुबैदा इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में जहाँ बच्चियाँ असली तालीम में मुनहमिक होती हैं, वहीं जो है दीनी तालीम से इन्हें ज़्यादा शगफ़ और लगाव है। यह सारी चीज़ें जो है हाफिज़ जी की देन हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी ये तालिबात जो है बैतबाजी, रुबायात बाजी और इस तरह से जो है कसीदा गोई, गज़ल गोई, इसके साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह नात में भी जो है बड़ी अच्छी कारकर्दगी अदा करती हैं। तो एक मुलाहिज़ा फरमाएँ, नात को जो है मैं यहाँ पढ़ने के लिए उम्मे सलमा को दावत देता हूँ कि वह आएँ और एक नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस ज़मीं पर नबी का जब आना हुआ, इस ज़मीं पर नबी का जब आना हुआ। आशना से सारा ज़माना हुआ। बस गया सबके आँखों में नूरे नबी, बस गया सबके आँखों में नूरे नबी। एक एक दिल में उनका ठिकाना हुआ। बच गए राह दोज़ख पे चलने से हम, बच गए राह दोज़ख पे चलने से हम। सहल हम सबका जन्नत को जाना हुआ। उनकी महकार सांसों को महका गई, उनकी महकार सांसों को महका गई। क्या हसीन जिंदगी का बहाना हुआ। बढ़ गई उनकी आमद से सूरज की लो, बढ़ गई उनकी आमद से सूरज की लो। और फिज़ों चांद का जगमगाना हुआ।
ہر طرف گونج آواز صلی اللہ، ہر طرف گونج آواز صلی اللہ، فرض ہر لب پہ ان کا ترانہ ہوا، آہنگ ان کی دعاؤں کا ہے حافظم، آہنگ ان کی دعاؤں کا ہے حافظم، عرش اعظم کی جانب روانہ ہوا، اس زمین پر نبی کا جب آنا ہوا، اس زمین پر نبی کا جب آنا ہوا، آشنا خود سے سارا زمانہ ہوا۔ یہ تھی ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح پیش کر رہی تھی۔ تو اسی طرح سے یہاں غزل کی بھی جو ہے باقاعدہ ایک ٹیم ہے، تو میں اس میں سے ایک طالبہ کو دعوت دیتا ہوں، عفیفہ اصغر، وہ آئیں اپنی آواز میں غزل پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے غزل پیش کرنا چاہتی ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ صحرا کا مسافر ہوں، گلشن میں جگہ مانگو، صحرا کا مسافر ہوں، گلشن میں جگہ مانگو، میں دھوپ میں جل جل کر سایوں کا پتہ مانگو، سایوں کا پتہ مانگو، برباد نہ ہو جائے یہ عشق محبت کے، برباد نہ ہو جائے یہ عشق محبت کے، میں سے میں کیا تیرے دامن کے سوا مانگو، دامن کے سوا مانگو۔ یہ تھی عفیفہ اصغر جو اپنی سریلی آواز میں غزل گوئی کر رہی تھی۔ تو اسی طرح سے غزل پڑھنے کے لیے میں مدیحہ فاطمہ قاضی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنی آواز میں غزل پیش کریں۔ مدیحہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلات مفاعل فعل، فاعلات مفاعل فعل، فاعلات مفاعل فعل، زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں، زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں، زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں، اپنی راتوں میں روشنی کرنے،
اپنی راتوں میں روشنی کرنے، اپنی راتوں میں روشنی کرنے، دل ہمارے جلائے جاتے ہیں، دل ہمارے جلائے جاتے ہیں، زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں، زندگی کی ہر ایک شعبے میں، زندگی کی ہر ایک شعبے میں، زندگی کی ہر ایک شعبے میں، حوصلے آزمائے جاتے ہیں، حوصلے آزمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حافظ کرناٹکی صاحب نے بچوں کی دلچسپی دیکھ کر چھوٹے چھوٹے اور دلچسپ تقاریر کا بھی جو ہے تقاریر کو بھی انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ تو تقریر پیش کرنے کے لیے میں سمینہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے انداز میں جو ہے حافظ جی کی لکھی ہوئی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا شمار کرنا یا تمام و کمال ان کا ادراک کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ان انعامات کا تسلسل جاری و ساری ہے اور ہر جگہ اور ہر پل موجود ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں اور انعامات سے ہر شخص ہر جگہ باسہولت فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرام بے حساب ہیں، مثلا علم میں وسعت، شعور، فکر، تخیل، جسمانی قوت و صحت، حسن و جمال، تندرستی، خوشحالی، اور پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات، مستحبات، پسندیدہ اطوار، اخلاق اور خوش ندوی پروردگار کے حصول کے طور پر دیکھیں تو اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک، مومن سے مسکرا کر ملنا، ایک دوسرے سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، سچ بولنا، ایک دوسرے کا کام آنا، یہ سب بظاہر روزمرہ کے معمولات ہیں، مگر ان سبھی کاموں کے لیے اللہ نے انعامات اور اجر مقرر فرما دیے ہیں۔ ان تمام چیزوں، عادات اور عبادات و اذکار کے علاوہ بھی وہ سارے کام جو خلق خدا کی بھلائی کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ کے انعامات کے استحقاق میں شامل ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے بے شمار نعمتوں اور بے پناہ انعامات میں سے ایک اہم انعام وقت ہے، کیونکہ ہر کام کے لیے وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی سے تمہارے لیے بہت سے پھل بطور رزق پیدا کیے، تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں کو مسخر کیا جو ہمیشہ تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور ہر اس چیز میں سے تم کو دیا جو تم نے مانگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس لیے یہ کہاوت مشہور ہے کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھی سمینہ جو تقریر پیش کر رہی تھی وقت کی قدر کے تعلق سے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک اور تقریر پیش کریں گی عامرہ عارف اللہ، وہ آئیں گی اپنی حافظ جی کی لکھی ہوئی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مضمون ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اگر نہیں بھی کرتے تو ہمارے کسی نہ کسی رویے سے اس کا اظہار جانے انجانے طور پر ہو ہی جاتا ہے۔ یہی حال ہماری محبت کا ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی ہمارے قول و فعل، عمل اور شوق دید سے ضرور ہوتا ہے، اور جب محبت خالص ہو، اصلی ہو، سچی ہو تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔
इसे इस तरह समझिए कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं बिल्कुल उसी की तरह हो जाते हैं, बल्कि हकीकी मोहब्बत का तकाजा ही यही है कि हम जिससे मोहब्बत करें बिल्कुल उसी की तरह हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब भी यही है कि हम अपनी वज़ा क़ता, अपना लिबास, तौर तरीक़ा, सलीक़ा सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनाएं, अपने आप को अपने महबूब की तरह बनाएं, इनकी हर बात पर दिलो जान से अमल करें और इनके हर हुक्म पर सिद्क़े दिल से तामील करें और इसी को अपनी ज़िंदगी की कामयाबी जानें। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत इनके सहाबा इकराम और अज़वाज मुतहरात करते थे। इनकी मोहब्बतें खालिस हीरे की तरह थी, इसके बावजूद इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हद एतदाल का पूरा ख्याल रखा, कभी गुलू नहीं किया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मोहब्बत के जज्बात पहले जैसे पाकीज़ा सच्चे ना रह सके, या यूँ कहें कि अक्सर लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सहाबा इकराम की मोहब्बत की तरह खालिस ना रह सकी। इसलिए बाज़ लोगों ने अपने मोहब्बत के इजहार में गुलू से भी काम लिया, जबकि गुलू सिर्फ इश्क़ इलाही के लिए मुस्तहसन है। याद रहे, जिस तरह मोहब्बत रसूल में हद एतदाल बहुत ज़रूरी है, इसी तरह मोहब्बत रसूल में कमी कोताही बहुत बुरी बात है। आजकल माहौल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में कमी कोताही की बहुत सारी मिसालें देखने को मिल जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा रखने वाले ऐसे बेशुमार लोग हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भुलाए हुए हैं। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, पहनने ओढ़ने, यहाँ तक के लोगों से मामलात तक की सुन्नतों को भुलाए हुए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ा व क़ता, शक्ल शबाहत और रखरखाव से मुताल्लिक़ ऐसी बहुत सी सुन्नतें हैं जिनको भुलाए हुए हैं, जो इस बात का दलील है कि वो ज़बानी आशिक़ रसूल हैं, जबकि इनके दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है। सही हदीस से रूगर्दानी करना भी इस बात की अलामत है कि उनके दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है, जबकि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक बात और हुक्म को अपनी जान से ज़्यादा कीमती जाना जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपना मुहासिबा खुद करें कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के चिराग रोशन है या नहीं, हम नामुस रिसालत के पासबां है या नहीं। अगर हम अपना मुहासिबा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से करेंगे तो हम आसानी से अपनी कोताहियों पर काबू पाएंगे, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो हम अपने बुझे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के चिराग रोशन करने में कामयाब हो सकेंगे। शुक्रिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह अदब के ताल्लुक़ से जो है सारे तालिबात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, और तलबा के अंदर भी जो है जोश और खरूश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज़ जी की ज़ेर साए किफ़ालत का ये नतीजा है कि मैदान उर्दू मैदान के अंदर जो है हमारी बच्चियाँ बहुत आगे हैं। तो आपने देखा कि चंद झलकियाँ थी है, और अगर वैसे प्रोग्राम किया जाए तो सुबह से शाम तक का जो है वक्त भी जो है हमें दरकार हो। तो ये छोटी छोटी झलकियाँ जो हम आपके सामने पेश किए हैं नमूनतन है, बस इसी पे जो है हम इत्तफा करते हैं कि अल्लाह पाक जो है इसे कौम और मिल्लत के लिए कबूल फरमाए, और हाफिज़ जी की उम्र में दराज़ी अता फरमाए, और उनको सेहत और आफ़ियत अता फरमाए, और मज़ीद काम करने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए।